आपको लिए चलते हैं। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। We got a lot of complaints in Haryana from our candidates that something was wrong, something was not working. Their predictions all went upside down. We had experienced this in Madhya Pradesh, experienced it in Chhattisgarh, Maharashtra, but we decided to zoom into Haryana and go into details about what had happened there. As you all know, all polls pointed to a Congress victory. These are exit polls that we have on the screen. 5 top exit polls after the elections have taken place are saying Congress is sweeping from 58, 54 to 62 seats. Some are giving BJP 20, some are giving BJP 28, but it's very clear that this is a massive sweep. The other thing that was surprising to us was that for the first time in Haryana's electoral history, ever, postal votes were different than the actual voting. Normally, postal votes and the actual voting are directionally similar. And here the Congress gets 73 votes, 73 seats in postal ballots, BJP gets 17. And this has never happened in Haryana before. So we started to say, okay, let us go into details. And when I first saw this information that you're going to see, I must tell you, I struggled to believe it. I was in shock. I simply could not believe what I saw. I told the team that, listen, cross-check this, not from one source, cross-check it multiple times, again and again and again and again. And what you're seeing today is the result of that process. What we are saying, and we are absolutely going to prove it to you 100% using data. And I want the young people of India, Gen Z, to understand this clearly, because this is about your future. What is being done is being taken from you. You are being stolen from, your future is being destroyed. So it's important that you listen and you watch. And as I've said multiple times, I take what I'm saying on this stage very seriously. I'm questioning the Election Commission. I'm questioning the democratic process in India. So I'm doing it with 100% proof. So we are pretty sure that a plan was put in motion to convert Congress's landslide victory into a loss. And the result was मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी his face. And please notice the word Vyavastha. What exactly is the Vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? This is 2 days after the election, when everybody is saying that the Congress party is sweeping the election, when every indicator is that the Congress party is going to win, all the polls, all the exit polls are saying it, and this gentleman is very sure and is smiling that the BJP has some Vyavastha that is going to show itself. Play that again. Look at the smile. Please look at the smile. भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now I'd like to ask you a question. मैंने शुरू से ये कहा। Sorry. So to put it into perspective, after all this, the end result was Congress lost the Haryana election by 22,000 votes.
to give you a sense of how close it actually became. There are 8 seats here. These are the seats. If you add up the votes, 22,000 votes was the difference between us and them. Total difference in votes between Congress Party and BJP, 1.18 lakh votes across the state. Okay? So now, let's go to the proof. Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide. Go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. Just like Anand and just like Mahadevapura. So last guesses, I'm going to give a prize if anybody can guess this. Anybody? She's from Brazil. She's a Brazilian model. That's a stock photograph. And she's one of 25 lakh such records in Haryana. This is proof of a centralized operation. I'm going to show you, if you just scan that, which I'll do just now. If you scan that, this opens. That's her official page. Okay? Now, she's one of 25 lakh such people. One question, what is a Brazilian woman doing on the electoral list of Haryana? Now you're looking surprised, like, what is this? There's a logic. There's a reason. Right. 25 lakh vote chori in Haryana. 5 categories. Duplicate voters, 5,21,000. Invalid addresses, 93,000. Bulk voters, 19 lakhs. And notice that we've left those two empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. After Mahadevapura, where we access Form 6, they have stopped it. Right? So we cannot give you the numbers of deletion and addition. We estimate that, at least in Mahadevapura, misuse of Form 6 was about 30% of the total malpractice. So our estimate is those two will add up to another 7 to 10 lakhs. But we're not going to discuss them because we do not have concrete proof of them. Right? But you should keep it in mind that 25 lakh, we have crystal clear proof that they are fake. That they either don't exist, or they duplicate,
or they're designed in a way for anybody to vote. Sorry. So, what is the big picture of Haryana? Big picture is 2 crore total voters, vote chori of 25 lakhs, possibly more, but confirmed bias of 25 lakhs. That means 1 in 8 voters in Haryana are fake. Right? That's 12.5%. And despite all this, the Congress party loses by 22,000 votes. Right? So here is an example. Fake photos. One photo, one assembly, 100 votes. This lady gets to vote 100 times in Haryana if she feels like. Okay? Can you zoom? Okay, no. Why? Why is she being allowed to vote 100 times? Why is a picture on 100 records? This is to create space. This is to create space so that anybody can vote, so that BJP people can move and vote. They can come from other states and vote. This is all to create space. And I'm going to show it to you and prove it to you without any doubt. You're going to walk out of this room saying, I have no doubt about what Mr. Gandhi said. Can someone come? Can 2 people come up? I want to ask you a question. Want to journalists? Yeah. I. Come. Here's a polling list of Haryana. Standard polling list of Haryana. आइए, कम. ये नॉर्मल हरियाणा की पोलिंग लिस्ट है जी. इसमें आपको कुछ अजीब सा लग रहा है? कैन यू सी समथिंग स्ट्रेंज? हाँ, जूम इन थोड़ा सा कीजिए. नहीं, यहां से दिख जाएगा. अमरजीत कौर. मल्टीपल नेम्स. कहां है मल्टीपल नेम्स? हाँ. वेरी गुड. हाँ, ठीक है. अच्छा, थोड़ा आगे जाइए. तरविंदर सिंह 73 ईयर. फोटो है किसी बच्चे का. लाइए. हाँ, क्या देखा? नहीं, हाँ, ये देखिए. अब इसमें कुछ स्ट्रेंज लग रहा है आपको? विक्रम सिंह, नाम पिता का नाम रन सिंह, मकान 76, आयु 34 साल. ये औरत है आदमी? वही मैं राहुल जी आपको बता रही. औरत है, महिला है, और उम्र भी 34 साल दिखाया जा रहा है. इनकी उम्र देख के लगता है कि कम से कम 65-70 साल की हो. अच्छा, ये 9 जगह आ रही है. 9 जगह है. 9 प्लेसेस. अच्छा, थोड़ा और दिखाओ. ये क्या है? ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दफे फिर से आई. फिर से आ गई. रणदीप सिंह. ये कभी 80 साल की है. 80 साल की है. रणदीप सिंह, संपूर्ण सिंह, 80 साल उम्र है इनकी. मतलब सेम पिक्चर है लेकिन अलग अलग डेटा है. नाम अलग है, एज अलग है, कभी आदमी है, कभी अलग है, कभी एज है, कभी कुछ और है. और देखिए, ये फिर से आती है. मल्टीपल है. मल्टीपल. ये फिर से आई. और जाइए, ये फिर से आई. फिर से आ गई है. तो ये फिर से आई. ये एक मिनट. ये गुरमेज सिंह, एक लड़के का नाम, उम्र 93 इयर्स. ऊपर कर दिया. हाँ. और उस लड़के की उम्र 23. ये हरियाणा की एक्चुअल पोलिंग लिस्ट है. बट इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग बात, और दिखाइए थोड़ा. शो मोर. कीप गोइंग. ज्यादातर उसी महिला की. Same woman is coming again and again and again and again. Right? 104 साल उम्र. 104 साल की हो गई. 75 साल. नहीं, वो मकान है. मकान नंबर. लेकिन इनकी भी उम्र 75 साल तो नहीं है. हरजीत सिंह जिनकी उम्र दिखाई जा रही है. ठीक है. और नीचे जाइए. ये सब 104 में रह रहे हैं. आप देखिए, ये सब 104, 103, 104, 103 मकान में रह रहे हैं. नीचे जाइए. और जाइए. तो अब मैं आपसे पूछता हूं, ये किस चीज की लिस्ट है? ये किस लेवल की लिस्ट है? ये हरियाणा की लेवल की लिस्ट है? असेंबली की लिस्ट है? किस चीज की लिस्ट है? ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है. She appears 223 times
in 2 polling booths. She can vote any amount of times she wants. Election Commission has the data on how many times she voted. We have a sense of it. Election Commission needs, thank you. Election Commission needs to tell us how many times this lady, whose name we don't know, whose age we don't know, but we know she occurs 223 times in 2 booths. In the Lok Sabha election, she was there 223 times in 1 booth. And then they decided to split it into 2 booths. Right? So this is the reason Election Commission destroys CCTV footage. Because multiple times the same person has the opportunity to vote. She can vote as Seema, she can vote as anything she wants. And this is not one example, this is the worst example. There are thousands and thousands and thousands of examples like this in Haryana. 200 votes, 50 votes, 100 votes, 150 votes, anybody can go and vote. Why are they doing it? Because they want to create space. And what is the proof they're doing it? They are destroying CCTV records. If we ask for CCTV records of this booth, we will know 100% what happened in this booth. Here again, the same idea. Fake photos, blurred photos, modus operandi is very similar. Simple name. Zoom in. Mamta, Durga, Sangeeta, Manju. Blurred photo. Nobody knows who this person is. Anybody can say, "Mera naam Durga hai," aa gayi, kar diya. Okay, go zoom out please. So they're occurring in multiple booths. Just go back please. Occurring in multiple booths. She's in booth number 20, the same photo booth number 27, booth number 24, booth number 106. Meaning it's not being done at the booth level. It's being done above the booth level. And the same thing on this side. This is a system, a method. Let's discuss duplicates. They have duplicate photos. We have 223 photos in 1 booth. We have hundreds of photos in the same photo in an assembly. We have the same record appearing again and again and again and again. We have this gentleman in booth 431. He's voting 14 times. In booth 508 he's voting. In booth 431 he's voting. We have this other fellow, Rudra Abhishek Jain. He's voting in booth number 130. He's voting in 131. His brother also is voting. They have 18 votes. Now the Election Commission can remove duplicates in a second. All they have to do is run a query that says, please identify same photograph. You don't even need AI for that. And you will know these are all the same photographs that we've got. All you have to say is identify the same name, same address. Boom, it's done. 2 minutes. They don't do it. Why? Reason. They are helping the BJP. Here's the most interesting one. And this is crystal clear proof that this is being done by the BJP. Okay? These are the duplicates. This is the Haryana fake entries. You can see these are all Excel sheets of fake photographs. All of them. Right? So, why is EC not removing duplicates? Because if they remove duplicates, there will be a fair election. If they ensure that there is one entry, one picture, there's a fair election. And EC doesn't want a fair election. Now this is absolute crystal clear proof of what the BJP is doing. Thousands of voters, BJP voters, BJP leaders
voting in Uttar Pradesh, and voting in Haryana. Okay? Zoom in please to Mr. Dalchand. This is Mr. Dalchand, BJP Sarpanch, sitting there with Mr. Minister Lakshmi Narayan. That's his voter ID in UP. That's his voter ID in Haryana. Same man. His son. Go back to the other one, please. That's right. That's his son. Yashveer. He comes here as well in Haryana. He's sitting in UP, voting in UP for the BJP. He's voting in Haryana for the BJP. Note an interesting thing. This is not a mistake. How do we know? Because Pita ka naam is Pritam Singh over there. Suddenly Pita ka naam changes over here, it's become Balakrishnan. Balkishan. And then his son doesn't make the same mistake. His son transfers his father's name there. So they managed to twist it in the father's one, but the son's one, they made a mistake. So you have a BJP leader who's voting in UP and who's voting in Haryana. And we've given you this as the strongest example. There are thousands and thousands and thousands of people who are voting in UP and voting in Haryana. A lot of them have association with the BJP. Here's another one, Mr. Prahlad, BJP Sarpanch, Mathura district. There he is in UP. Here he is in Hodal Assembly. Same man. Right? Here the same, father's name is the same, Totaram, Prahlad. And here he is standing with the nephew of Lakshmi Narayan. These are not two examples. There are thousands of these. Where the entire large numbers of people are just picked up and they have the opportunity, because they belong to, are associated with the BJP, when they have the opportunity to be a voter in UP, to be a voter in Haryana, to be a voter in Madhepura, to be a voter in Varanasi. This option is available to the BJP. This is the Vyavastha that man was talking about. Right? Listen to this. അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വർഷം താമസിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഒരു സംശയമില്ല. He's saying it. He knows it. And we've proved it. Do you have any doubts? അതിനകത്ത് Now listen to this. The election commissioner saying that house number 0 is for homeless people. Look, we do our homework. We are talking truth here. We will check everything this man says. Okay? So we decided to check what he says. जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं. कई लोगों के पास घर नहीं होता. Look, nobody else is convinced. लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है. Look at the Sardar ji. He's looking like ये तो झूठ बोल रहा है. उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है. कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे. पुल के नीचे, सड़क पर या लैंप पोस्ट के किनारे. So we systematically looked at house number 0. And we said, okay, let us see whether these house number 0s are actually living on the road. Are they actually homeless? जिन लोगों Here's house number 0. That's house number 0. Mr. Narendra, and we have hundreds of examples of this. Mr. Narendra living in that house, but that house is house number 0. And when we tried to find Narendra, we understood what the issue was. Why there is a house number 0. We couldn't find him. Because when we sent somebody to look for him, it was impossible to find him. We physically identified this man, physically saw him in the village, and physically found out where he lives. And that's how we got to this house. The reason there is house number 0 is nobody can identify where that person is. Once he is voted, he's gone.
You cannot go and find him. Again, this man is one of hundreds of examples that we have. We have cross-checked. The Chief Election Commissioner is lying to the people of India openly. This is a method to make voter and address verification. So here is the Vyavastha the gentleman was talking about. The Brazilian model to create space, put her name, allow anybody to vote. The BJP leaders and BJP people who get the option of voting in Uttar Pradesh and Haryana. The blurred photographs, the deleted voters, and the house number 0. What's the big picture? The big picture is 22,000 votes was the margin. 25 lakhs was this. So you can understand that there was no election in Haryana. There was a theft in Haryana. And it's very clear who is responsible for the theft. These gentlemen colluded with the BJP to ensure that the Congress could not win the election in Haryana. The Election Commission is in partnership with the Prime Minister and the Home Minister, and they have destroyed the democratic foundations of this country. There is absolutely nothing in this presentation that has not been backed by 100% proof. Every single piece of data that we've used here comes from the Election Commission, is from their records, is from their voter list. We have just checked it and cross-checked it and shown you what the reality of Indian democracy is. And it is pretty clear to us that now this is a system. This is something that has now been industrialized, and it can be used in any state, and it is going to be used in Haryana, and I am confident that after the Haryana elections we will get the same records and we will show you that the same thing has happened in Haryana. You might in Bihar. You might be asking, oh, but how come you didn't see these anomalies in the voter list? Because the voter list comes at the last minute. Because the voter list is given to us at the last minute before the elections. So this is a systematic method that has been evolved by the Prime Minister, by the BJP, and by the Election Commission to kill the Constitution and to kill Indian democracy. Yeah. We have some examples from Bihar where again, this is an example just from one village where voters have been deleted. We've invited them to come and talk to you. And they'll introduce themselves. बताइए जी। हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक है। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा करके हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओ वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा करके सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे गांव के सहयोगी रवि जो है ये भी हमारे साथ है, क्योंकि हम विकलांग है, कहीं जा आ नहीं सकते हैं।
और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं जाने लायक है सर, और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? जी हमारे गांव में जी थैंक यू। नमस्कार, मैं रवि कुमार यादव, बिहार, जमुई जिला, इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड, ग्राम धरमपुर का हूँ। सर मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर तो वो 300-325 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। तो ऐसा बात है सर। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ बिहार। This is just the tip of the iceberg. We are absolutely certain that we will be able to do the same presentation for you after the election once the data comes. We have no doubt. और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ? जी नहीं सर, बस हम यही चाहेंगे कि बस सहयोग कीजिए ताकि हमारे गांव में नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो सर। ये हमारे कयूम जी। मेरा नाम है मोहम्मद कयूम अंसारी। मेरा मकान है धर्मपुर। पास कर दे। हाँ, शाबाश। मेरा नाम भी वोट लिस्ट से काट दिया गया है। हम लोग जो बोले आपका नाम कट गया तो उसको जुड़िए, तो बोला आपका नाम नहीं जुड़ा। आपका नाम नहीं जुड़ सकता। नहीं। So this is the state of Indian democracy. Thank you जी। धन्यवाद। You're looking shocked. Shocked, huh? This is the truth. Right? करने के लिए दी है आपने। देखिए एक बात आपको समझनी होगी, अगर वोटर लिस्ट करप्टेड है और हमें लास्ट मिनट पे वोटर लिस्ट दी जा रही है, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। दिस इज जस्ट वो वोटर लिस्ट दिखाओ जरा। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन। दिस इज द बैकबोन foundation of election. If this is wrong, no amount of training is going to fix it. We can keep training. But legally, she's allowed to vote. Legally, उसका नाम 5 बार आ रहा है, वो इस एक बूथ में वहां वोट कर रहा है, वो यहां पे एक बूथ में यहां कर रहा है, एक बूथ में वहां, कहां से ट्रेनिंग? तो अगर वोटर लिस्ट ही करप्टेड है और वोटर इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट का ही प्रयोग कर रहा है चुनाव को खत्म करने के लिए, तो कोई ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा और कोई पार्टी नहीं कर सकती। राइट? Look, Supreme Court is watching. Supreme Court, the highest court in the country, is watching. They have seen Madhepura presentation, they have seen Anand presentation, and now they have seen Haryana presentation. ये दिख रहा है सबको. It is not hidden. We are not doing it in a quiet room. We are doing it in front of the Indian media. Everybody in India knows. And there is nothing here that can be questioned. Fundamentally, this is their data. This is not our data. Sanjeev Chopra, PTI, English. Rahul ji, you've highlighted in the past how vote chori has taken place in Karnataka, then in Maharashtra, and now you've highlighted how, vote chori has taken place to the extent of 25 lakh votes in Haryana. Now, the Election Commission is going ahead with SIR in several states, and some of the opposition ruled states, some of the opposition parties which rule in different states, have decided to move the Supreme Court against the SIR exercise, which you claim is aimed at deleting votes and all that. So I want to ask you whether the
Congress and the other opposition parties are unitedly going to take up this fight across on the streets by launching a movement or moving the Supreme Court against this exercise. So are you going to unitedly launch this, or Look, each party is going to fight? Every single opposition party, right, understands this. They can see this. There's nothing transparent, nothing hidden here that you can't see what is happening, right? The fundamental question of an election is the integrity of a voter list. Okay, we are showing you. This is the voter list of Haryana. This, right? This is the lies written. This is the lies written inside voter list of Haryana. We are showing you that the Haryana voter list is flawed, is rubbish. This is a central question. If this is flawed, elections are fundamentally flawed. Now, we have been suspecting this again and again and again. We suspected it in the Lok Sabha, we suspected it in the Lok Sabha. Before that, we suspected it in Haryana, in Madhya Pradesh, in Chhattisgarh. Suddenly, our vote remains the same, BJP vote remains the same, BJP vote just jumps, all the independents go into the BJP. I mean, there were things that were blazingly obvious to us that this just can't be right. But we just didn't have the proof. So we couldn't speak. Now, this thing is the proof here. That's the proof. That the voter list in India, the Brazilian woman, 220 votes for one woman in two booths, 100 in 11 assemblies. This is all proof that the voter list is a lie. Right? If the voter list is a lie, there is no democracy. Please understand the world that you're living in. That is my duty as a patriotic Indian, to let you know the world that you're living in. That is my role as a leader, as an opposition leader of this country, to let you know the real world that you're living in. That's the point. How the opposition proceeds, how we proceed, sure. We will coordinate with the opposition, we will work together. But the fundamental thing that the youth of India have to understand, the people of Haryana have to understand, there was no election in Haryana, it was a lie. And we proved it. Anwarul Haq, PTI, Hindi. Please, sir, don't do that. Don't do that. सर मेरा सवाल ये है कि SIR अब उन राज्यों में होने जा रहा है जहां चुनाव है, जैसे केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तो वहां पर वोट चोरी रोकने के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या स्ट्रेटजी होगी कि वहां पर वोट चोरी? देखिए, बूथ लेवल पे हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं. सबसे पहले आपको ये समझना है कि वोटर लिस्ट लास्ट मिनट पे मिलती है. ये जो हरियाणा की वोटर लिस्ट थी, लास्ट मिनट चुनाव से एकदम पहले हमें दी जाती, फाइनल लिस्ट. और कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं. बजरंग दास जी, एक बार फिर राहुल गांधी की ओर से वोट चोरी को लेकर तमाम आरोप लगाए गए. हालांकि इस बार दावा कर रहे हैं कि कई सबूत लेकर सामने आए हैं. देखिए मैडम जी, सबूत तो कई बार दे चुके हैं, मगर किसी प्रकार की सुनवाई तो नहीं है ना इस राज्य के अंदर. देखिए, वोट चोरी नहीं, ये तो सरकार चोर सरकार है, और यहाँ तक कि विधायक चोर भी है. इन्होंने वोट चोरी करके तो सरकार बनाई. मैं ये बताना चाहता हूँ, 2024 में जब चुनाव था विधानसभा का, ये खुलेआम चर्चा थी कि बार भाई हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, 70-72 सीटें आएगी. जो गोदी मीडिया जो नेशनल था, जो बड़े बड़े चैनल अपने आप कहते हैं अभी हम भी सब स्तर के चैनल, वो भी दिखाने पे मजबूर हो गए थे कि कांग्रेस एक तरफा आ रही. यहाँ तक कि उस समय ऐसी स्थिति हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी के अनेकों पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके थे. ऐसे हालात थे. मगर क्या हुआ, एक दिन पहले जैसे मुख्यमंत्री ने वोट गिनती होने से पहले, एक दिन पहले मुख्यमंत्री सैनी साहब ने स्पष्ट बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार हमारी ही बनेगी, हमने सारी व्यवस्था कर ली है. ये नायब सैनी जी का बयान था. और एक बात देखिए, चुनाव भी 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को जो वोट पोलिंग होती है, रात को 12 बजे चुनाव आयोग जो घोषणा करता है 61% वोट पोलिंग हुई है. ये आंकड़े की बात है. और फिर
जिस दिन गिनती होती है उससे एक दिन पहले कहते हैं 67.9% हुई है। ये आंकड़े की 6% वोट वो तो पोलिंग से बाद के बाद 6% वोट बढ़ाई दी जाती है। ये तो स्थिति सरकार की है, ये तो क्या है, इनका सिस्टम ही इस प्रकार की है। एक गड़बड़ी और बताता हूँ आपको, जहाँ ईवीएम की मशीन है, वोट पोलिंग हुई, मशीन चली, उसके बाद डब्बा बंद करके स्टोर रूम में धर दी गई, गिनती के समय जब वोट मशीन निकालते बिल्कुल बजरंग जी आपके पास वापस आएंगे। हालांकि जिस बयान का आपने जिक्र किया, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी दिखाया, अभी आप भी मुख्यमंत्री के बयान का जिक्र कर रहे थे, उसके क्या मायने हैं वो हम बीजेपी के प्रवक्ता से समझ लेते हैं। पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, मुख्यमंत्री के बयान को लेकर अब हलचल तेज हो चुकी है, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो दिखाया, क्या मायने निकाले जाए उसके? नमस्कार भावना जी, बजरंगदास जी को नमस्कार और हरियाणा की देवतुल्य जनता को भी नमस्कार। देखिए, हम तो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि बिहार में भी जलेबी का स्वाद चखा जाएगा। अब इसको कैसे देखेंगे? एनडीए की सरकार वहां बनने वाली है, तो नाक न जाने आंगन टेढ़ा। इनका जनता के साथ कोई संवाद नहीं है, जनता से लोग बात नहीं करना चाहते। अब मैं बिहार का ही संदर्भ अगर ले लूं तो कैसे राहुल गांधी वोट चोर का एक नारा लेकर के पूरे बिहार में घूमे और पूरे 30 दिन तक बिहार के चुनाव के जो उनका प्रचार था वहां पर वो पहुंचे भी नहीं। अब जुमा 3-4 दिन से वो बिहार के चुनाव में पहुंचे, तो 30 दिन तक वो कहाँ गायब थे, क्यों गायब थे? अगर इतना ही ज्यादा था फिर ये हार जाएंगे तो कह देंगे कि नायब सहनी में कह दिया था कि हम तो बिहार जीतने वाले हैं, जलेबी बटेगी, तो जलेबी बट गई। तो सवाल की बात है, बजरंगदास गर्ग जी की पार्टी का या कांग्रेस की पार्टी का किस तरीके का चरित्र है, किसी की चाल है इनकी, किस तरीके की ये बातें सोचते हैं? अरे भैया, जनता के बीच जाओ, जनता से संवाद करो, जनता की बातों को समझो, जनता के इमोशन को समझो। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जब कल बिहार से आते हैं तो रात को 1 बजे भी जनता को एड्रेस कर रहे, जनता से मिल रहे, जनता अपने दुख सुख उनके साथ बांट रही है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो लगातार जनता के बीच, जनता के साथ बात करते हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस है जो कि उन्होंने पहले ही दिन बोल दिया कि भाई हमारी सरकार बन रही है। और हम तो हमेशा ही बोलते रहे, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बोलते कि हमारी सरकार नहीं बन? या इनेलो के साथी की 2 ही सीटें आई थी, क्या वो लोग नहीं बोलते? ठीक है पंकज जी, आपकी बात हम तक पहुंच चुकी है। बजरंग जी, बीजेपी का कहना है कि दावा तो हर पार्टी करती है अपनी जीत का, इसमें गलत क्या है? देखिए, जीत के दावे की बात की, मैं चुनाव आयोग की बयान की बात करूं। 5 अक्टूबर को जब वोट पोल होती है, रात को 12 बजे चुनाव आयोग घोषणा करता है 61 कुछ वोट पोलिंग हुई है। जब चुनाव आयोग घोषणा करने के बाद और जिस टाइम गिनती होती है उस टाइम एक दिन पहले कहते हैं 67.9, तो कमी रह गई, 6% वोट बढ़ा देती। इसका मतलब पूरा गोलमाल है। और मैं पूछता हूँ, जो कोई भी एक मोबाइल ले लो, कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम ले लो, आप उसको चार्ज करके छोड़ दो, 5 दिन तक खाली छोड़ दोगे तो भी वो डाउन हो जाती है बैटरी, ऑटोमेटिक बात है। ईवीएम मशीन आपके सामने, पोलिंग हो रही है, मशीन चल रही है, उसके बाद डब्बा बंद होकर वो पेटी में धर देते हैं, 7 दिन बाद निकालते हैं तो 99% बैटरी चार्ज होती है। तो इसका मतलब क्या है? ये मशीनें चेंज की गई है, गड़बड़ घोटाला किया गया है, ये स्पष्ट दिखता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। ये तो वोट चोर भी है ना, विधायक चोर की। मैंने आपको बताई बात, हिमाचल से इन्होंने 6 विधायक चोरी करके सरकार गिराने के लिए हेलीकॉप्टर से पंचकुला जाए, वहाँ होटल में खड़ा लिया किडनैप करके। इन्होंने राजस्थान के विधायक को पकड़ के लिया, गुड़गांव में होटल में ठहराया, सरकार गिराने की कोशिश की है। ये दिन उन्होंने सबकी सरकार हिमाचल की चोरी कर ली, महाराष्ट्र की कर ली, बिहार की कर ली, आपके सामने है। ये तो सत्ता के बल में लगा लो आप, सीबीआई ईडी के दबाव में ये सरकार चल रही है। और ये का काम है, चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी का तोता बना हुआ है, उनके कहने पे काम कर रहा है। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम वो चुनाव आयोग है, इसलिए ये वोट चोरी का खेल खेल रहे हैं। बिहार के अंदर हारे पड़े हैं, अरे वोट चोरी नहीं करेंगे तो 100% हारे पड़े, बुरी तरह हारेंगे। अरे इन्होंने वोट चोरी का खेल फिर खेल लिया तो भाई आप समझते हो क्या हो, कुछ भी हो सकता है, तो कहने की बात ही नहीं। हालात ऐसे जिसमें हर जगह ये ना चोरी, हर जगह जहाँ भी देखोगे चलती सरकार गिराना, विधायक को उठा के ले जाना और ये वोट चोरी करना, ये खेल ऐसा
इन्होंने खेल लिया, इन्हें पता लग गया भी ऐसे ऐसे खेल खेला जाता है, ऐसे ऐसे गलत काम करके सरकार बनाई जा सकती है। कोई बोले उनको ईडी छोड़ देते हैं, कोई बोले सीबीआई छोड़ देते हैं, कोई बोले इनकम टैक्स छोड़ देते हैं। इनका काम ये बन गया सरकार का दबाव की राजनीति चल रही है और दबाव की राजनीति से ये सरकार चला रहे हैं, इसमें कोई दो बात। ठीक है बजरंग जी, आपके पास वापस आएंगे। पंकज जी, अब तमाम बातें आपने उनकी सुनी, कई बिंदु हैं जिसके आधार पर कई बार शक जाहिर कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी खुलेआम सामने आ चुके हैं, राहुल गांधी भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। और देखिए दाऊला जी, ना तो राहुल गांधी जी की बात पर जनता को भरोसा है, न कि कांग्रेस के जो हरियाणा के नेता है इनकी बात पर यहाँ की जनता को भरोसा है। अब अगर इन्होंने कहा कि भाई वोट परसेंटेज बढ़े, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब कर्नाटक और तेलंगाना में भी 5 से 6% अगले दिन बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत आया, तो दोनों जगह सरकार तो नहीं थी, वहां पर क्या इन्होंने गड़बड़ डाला करवाया था? क्या वहां पर चुनाव आयोग तो इन्होंने अपना तोता बना रखा था? कैसी मतलब एक बेतुकी बातें करना बैठ करके टीवी चैनल पर से भाग जाना। अरे कम से कम सामना तो करो इन सारी बातों का। बजरंग दल की पार्टी ने हरियाणा के अंदर वोट चोरी से एक अभियान चलाने की कोशिश की। राव नरेंद्र सिंह के माननीय अध्यक्ष बने अभी नेतृत्व, इनकी पार्टी से वो हरियाणा का साथ जनता इनके साथ, इनके जो पत्थर है जो ये जनता के बीच लेके जा रहे हैं, वोट चोरी पर हमारे पेपर पे साइन कर दो, लोग जनता के पेपर पर साइन करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हरियाणा की जनता को पता है कि एक सरकार ऐसी है जो लगातार तीसरी योजना में जिसको हमने चुना है वो लगातार हमारे लिए काम कर रही है, और ये लोग जबरदस्ती ऐसा वोट और वोटों का नारा लगा करके बिना बात की बेतुकी बातें कर रहे हैं। तो जनता को इनकी बातों से कोई सरोकार नहीं है, और हम इनकी बातों को पूर्ण तरीके से खारिज करते हैं कि जो इन्होंने जो भी आरोप लगाए ये सारे के सारे निराधार हैं, झूठे हैं और हाइपोथेटिकल हैं। अगर एक में भी सच्चाई है तो बजरंग दास जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंडीगढ़ पहुंचे उन सारे लोगों को लेकर के, अगर ऐसी बात हो, लेकिन इनके पास लागू करते हैं। आज राहुल गांधी जी की पूरी पीसी में एक ही तरह नहीं दिखा पाए, एक भी बात नहीं कर, और जब पहले की पीसी रही इसलिए भी वो पेश किए, सारे के सारे झूठे थे। वो जनता जिन जिनके नाम लिए वो सारे टीवी चैनल पर आकर के आपके टीवी चैनलों के माध्यम से पूरी जनता को आप लोगों ने दिखाया कि जो कांग्रेस है वो झूठा नैरेटिव भरने की कोशिश कर रही है, और बिहार में जलेबी बट रही है। बजरंग दास जी के घर भी जलेबी आपको बता देंगे, बिल्कुल चिंता और आवश्यकता करने वो दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। ठीक है पंकज जी, तो चुनाव आयोग पर इनका सवाल है जाओ, चुनाव आयोग ने इनको बार बार कहा भाई हमने आपके जो सवाल है उनके जवाब दे दिए, लेकिन उन जवाबों को ये संतुष्ट नहीं हो रहे। तो लेकिन हरियाणा की जनता और देश की जनता, माननीय मोदी जी, चुनाव आयोग में, ठीक है पंकज जी, दावे कितने सही है, ठीक है, दावे कितने सही है या गलत है ये जांच के दौरान सामने आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नहीं। बजरंग दास जी, देखिए ये बात ठीक है, जांच की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। जांच होगी, जांच कौन करेगा? मिन्नती चोरा घर पे आना है, ये चोरों की बरात कच्ची हुई है, कौन करेगा? जांच नहीं बता दीजिए ना। चुनाव योग इनका, ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, सरकारी मशीनरी इनकी, कौन जांच करेगी? प्रूफ तो प्रूफ दे दिए, एक जहाँ प्रूफ हुई दुनिया भर के प्रूफ दे दिए, फर्जी वोट के प्रूफ दे दिए कि फर्जी वोट बना रखे हैं। एक घर के अंदर दिखा दिया कि कितने वोट बन रहे हैं, एक दुकान के अंदर 80 वोट बना रखे हैं, दुकानों में वोट बनते हैं। तो ये बता दिया एक मकान के अंदर इतने वोट है फर्जी, ये जिसका फर्जी एड्रेस दिखा दिए, सबकी में प्रूफ। चुनाव आयोग को शिकायत बिहार में कर दी, चुनाव आयोग की शिकायत कर्नाटक में कर दी, महाराष्ट्र में कर दी, हरियाणा में तरक्की आपके सामने, कोर्ट में केस भी चल रहे हैं आपके सामने है। पलवल के जो हमारे जो विजय गांधी ने केस कर रखा है, और हमारे जो 2-3 विधायकों ने और केस कर रखा है, तो मतलब कोर्ट अदालत से फैसला आएगा ना, इनसे तो कोई उम्मीद कर ही सकते ना, इस बात से मानते नहीं है। इनका क्या बिल्कुल ठीक है जी, हमारा हर काम बढ़िया है जी, बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग तो उनका जमा सोचता बना हुआ है, कोई सुनाई ही नहीं करता किसी प्रकार की। मैं कहता हूँ कि सही होना चाहिए ना, मैं जो स्थिति है इसकी तो फर्जी वोट बने, फर्जी वोट कटने की इसमें कोई दो राय नहीं, और जो सही वोट काटे ना जाए तो सही वोट भी काट रहे जाते हैं। जो इनके साइड के वोट नहीं है, ये देख लिया ये एरिया में हमारे वोट नहीं है, इसको काट दो जी, है यहाँ देखा जी ईवीएम की सेटिंग कर लो जी, या फर्जी वोट बना लो। ठीक है बजरंग जी, लेकिन अभी भी पंकज जी की ओर से जिक्र किया गया था, वो जिक्र कर रहे थे कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का उदाहरण कांग्रेस की ओर से नहीं दिया गया। बिहार का जो चुनाव है,
सारी बीजेपी पार्टी लगी हुई है, फर्जी को पोल करवाने की स्थिति में लगी हुई है। इन्होंने क्या करा, बाहर के जो भी लोग बाहर गए हुए हैं, बिहार से बाहर गए हुए हैं, उनको पकड़ के ट्रेन पे ले जाके उनकी वोट पोलिंग की स्कीम बना रखी है। तो हम लगे वहाँ स्कीम पोलिंग करवाएंगे, फर्जी काम करवाएंगे। ये स्थिति की रखी है उन्होंने। ये काम का ये हो रहा है। ये तो सब तरीके कैसे भी हम जिसके सरकार बनाए। ठीक है, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा भी जुड़ चुके हैं। रणबीर गंगवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। देखिए, कई बार वोट चोरी के बड़े आरोप लगा चुके हैं, अब तो हरियाणा के लिए आरोप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री का बयान भी सुना चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी। क्या आरोप लगाए? वोट चोरी को लेकर। वोट चोरी हुए हैं कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस को इस बात पे आत्ममंथन करना चाहिए क्यों है। इन लोगों ने हमेशा ये कह करके चुनाव में वोट लिए कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और जब उनकी सरकार आ जाती थी तो फिर इनको गरीब दिखाई नहीं देता था। वो आज सारा का सारा, चाहे किसान है, चाहे कमेरा वर्ग है, चाहे SC है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे और लोग है, व्यापारी है, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आज उनको ये वोट चोरी की बात दिखाई देती है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसका एक तरीका है। कोई भी अगर 18 साल का युवक या युवती है तो उसका वोट बनाया जाता है, कोई अगर शिफ्ट कर जाता है तो उसका वोट काटा जाता है, किसी की डेथ हो जाती है तो वोट काटा जाता है। और आज ये उनके बयान अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। कभी तो कहते हैं कि वोट ज्यादा बन गए, फर्जी बन गए, कभी कहते हैं वोट काटे जा रहे हैं। अब उनको खुद को भी पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके के हालात आज कांग्रेस पार्टी के हैं। बिल्कुल रणबीर गंगवा जी, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री का एक बयान भी कई बार सुना चुके हैं राहुल गांधी, जिसमें मुख्यमंत्री कहते नजर आ रहे हैं कि वो आश्वस्त है बीजेपी की ही पार्टी सरकार बनेगी, और व्यवस्था शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसको लेकर बढ़ चढ़कर दावा किया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम आश्वस्त हैं इस बात के कि बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बन रही है, क्योंकि आज लोग जो है वो एनडीए में विश्वास रखते हैं। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने देश का गौरव विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया, देश की जनता उनके साथ है। इसीलिए लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार देश के अंदर भी है और बहुत से प्रदेशों के अंदर लगातार सरकार बनी हुई है। बिल्कुल रणबीर गंगवा जी, हालांकि जिस तरह से राहुल गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया कि लगातार ये कहा जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसके बाद जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी की सरकार बन गई। इसी को लेकर बार बार दावा किया जा रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। ना, गड़बड़ी इनके क्रियाकलापों में हुई है। जब इनकी सरकार थी तो किस तरीके से हरियाणा के अंदर, ही हरियाणा की बात कर रहे हैं, जब 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही तो हालात ये थे कि लोगों को गांव से पलायन होकर के दूसरी जगह पे जाना पड़ा। किस तरीके से किसानों की जमीन छेद के नाम पे लूटी गई, किस तरीके से युवाओं की नौकरियां बेची गई। इसलिए आज इनको दिखाई देता, आज वो सारे के सारे जो लोग हैं जिनको वो याद है उनका शासन, वो सारे के सारे आज ट्रांसपेरेंसी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है, उनके साथ है। तो इनको दिखाई देता है कि वोट चोरी हो गई। बिल्कुल रणबीर गंगवा जी, हालांकि एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसका कुछ सेकंड का फ्रेम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया गया। उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास व्यवस्था है, हम चुनाव जीतेंगे। इसको लेकर कांग्रेस दावा कर रही है कि कुछ गड़बड़ी की गई है और उसमें बीजेपी भी शामिल है। हमारे पास कौन कहता है? हमारे अपना संगठन है, संगठन के कार्यकर्ता लगातार लगे रहते हैं और संगठन के कार्यकर्ता हमारे नीचे से रिपोर्ट देते हैं। एक एक चीज का हमें पता होता है कि कहाँ से जीत रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों पे हम काम कर रहे हैं, तो हम इस बात का आश्वस्त रहते हैं ना। कौन कहता है? ये तो ओपन किताब है, खुली किताब है। जी धन्यवाद रणबीर गंगवा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने इतना समय हमें दिया। बजरंग दास गर्ग जी, आपने सुना कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा हमारे साथ जुड़े थे। व्यवस्था शब्द को लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं से मुख्यमंत्री का मतलब है कि तमाम कार्यकर्ता है, उनके पास पूरी रूपरेखा है कार्यप्रणाली की। नहीं मैडम जी, वर्डिंग का फर्क है। उन्होंने कहा था हमने सारी व्यवस्था कर ली है, हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, व्यवस्था है नहीं, व्यवस्था कर ली है, ये कहा था। पूरे रिकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए,
उन्होंने शब्द क्या नहीं बोला। दूसरी बात सुनिए, मैंने आंकड़ा खेल बताया, 6% वोट बढ़ा दी, ये आपके सामने है। ये कहते हैं इनके विचारों में बोधाभास है। मैं बताना चाहता हूँ इन्हें साथी को, 55 महीने के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 55 महीने में 46 लाख नई वोट बनी थी। और जब विधानसभा चुनाव आए सिर्फ 5 महीने रहे, 5 महीने में इन्होंने 48,000 नई वोटें बना दी महाराष्ट्र के अंदर। ये घोटाले नहीं तो क्या है, इनके सामने है। मैं आंकड़े दे सकता हूँ, ऐसे ऐसे मकानों के अंदर जिसका एक कमरा है उसके के अंदर भी 1800 वोट बना दिखा रखी इन्होंने। जो आदमी जिंदा नहीं है उसकी वोट दिखा रखी है, के ऊपर वोट दिखा रखी है। ये लोग कहते हैं भी हम 7 साल की बात कर रहे हैं। भाई वो तकलीफ क्या है, जब हम चुनाव आयोग के ऊपर बात उठाते हैं तो ये बीच में उसके प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं चुनाव आयोग के? चुनाव आयोग की बात हम करते हैं, चुनाव आयोग जवाब देगा। चुनाव आयोग तो ठीक है, उनके स्पोक्समैन बन के ये मैदान में आ जाते। ठीक है बजरंग जी, आपके पास लौटेंगे। पंकज जी जवाब दीजिए। हाँ देखिए भावना जी, ऐसा है, मैं राहुल गांधी की पीछे सुनता था, उन्होंने कहा कि भाई एग्जिट जब चुनाव हो जाता है खत्म तब तो वो कहते हैं भाई एग्जिट पोल जो वो धोखा, ऐसा कहा है उन्होंने। और आज उनको एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक नजर आ रहे हैं। आज एग्जिट पोल सटीक नजर आ रही है। पहले जब ये हार जाते हैं तो धोखा लगता है। अरे झारखंड के अंदर एग्जिट पोल बीजेपी को दिखा रहा, बीजेपी हार गई, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो 3 योजनाओं से जो हार है उन्होंने इनका मानसिक संतुलन बिगाड़ रखा है सारे कांग्रेसियों का, इंक्लूडिंग इनके जो बड़े नेता है राहुल गांधी जी, इनका भी। तो इन पर एक सटीक कहावत बैठी हरियाणवी, खिसियानी दिल्ली खंबा नोटी, इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इनके लिए कहने के लिए। जब ये हार जाते हैं 3 योजनाएं लगातार हारने के बाद कि भाई भारत देश के अंदर मोदी जी की सरकार कैसे बनती जा रही है, एनडीए की सरकार कैसे बनती जा रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना विकसित कैसे होता जा रहा है। और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूर्व में रहे और अब रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, इनके नेतृत्व में हरियाणा कैसे विकास करता जा रहा है, इनसे बड़ी आपत्ति है लोगों को। और हरियाणा और पूरा देश ऐसे ही विकसित बनेगा, 2047 का हमारा सपना है। और आज हम जब कहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि पिछले 10 सालों में जो हमने कार्य किए थे वो हरियाणा की जनता के लिए किए थे, वो व्यवस्थाएं थी जो हमने व्यवस्थाएं बदली। इनके समय पर बैंकों में बुजुर्ग हमारे लाइनों में लग करके पेंशन लेने जाते थे, आज जब व्यवस्था बदली कि भाई अब घर बैठे बुजुर्ग के खाते में पेंशन आ जाती है, तो हमने व्यवस्था बदली। आज जब हरियाणा दिवस, पंकज जी आरोप तो यही है, आरोप अभी फिलहाल ये नहीं है कि व्यवस्थाएं बदली है नहीं बदली है, आरोप ये है कि सत्ता में आने के लिए दुरुपयोग किया गया है। इनका नैरेटिव चलाने की कोशिश ना करें। व्यवस्था भाई वो बदली है 10 सालों में, और अब आज फिर से कह रहे हैं हम व्यवस्था बदल रहे हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं और 2029 में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर जीतेगी। आज आप लिख लें और दगड़े जानकारी जी इस चीज को नोट कर लें और बार बार चलाते रहे कि पंकज बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कहने गया था कि 2029 में तो सरकार बनेगी क्योंकि व्यवस्थाएं पहले कर रखी। क्या साल में हमने कह दिया, आप लोगों ने जितना चलो उतना करके दे दो। लेकिन जो झूठ की राजनीति है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। हरियाणा की जनता और देश की जनता की वोट चोरी वाले मामले में इनके साथ नहीं है। अगर होती तो बिहार में 1 महीना पहले जब वोट चोरी मामले में इन्होंने चलाया, पद यात्राएं चलाई और 30 दिन तक बिहार के चुनाव से नदारत रहे राहुल गांधी, और आज वो अचानक से फिर से कूद गए हैं, कभी पानी में कूद जा रहे हैं, कभी टंकियों में कूद जा रहे हैं, कभी मछुआरों के साथ कूद जा रहे हैं। किस तरीके की राजनीति आज कर रही है देश की जनता, बिहार की जनता, हरियाणा की जनता सब देखी जा रही है। ये नोटंकी बात है, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। कहकर भाग जाना, बोलकर भाग जाना, ये इनके तथ्यों में है। हरियाणा के संदर्भ में तो हरियाणा के अंदर 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जो एमएलए के कैंडिडेट थे वो कुछ 1100 वोटों से आ रहे, कुछ 700 वोटों से, कुछ 600 वोटों से, ऐसे वोटों से आ रहे। अगर 20,000 वोट हमारे और फालतू आ जाती तो हम 55 से ज्यादा का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी छू चुकी होती है। तीसरी बार अगर हरियाणा की जनता ने विश्वास जताया है, ये तो आपत्ति है कि हरियाणा की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को शुरू कर रही है, क्योंकि हम हरियाणा की जनता के मुद्दे उठाते हैं, उनके काम करते हैं, किसान हो, युवा हो, महिला हो, सबके लिए काम करते हैं। आज 2100 रुपए पेंशन देने की बात अगर महिलाओं को करती है भारतीय जनता पार्टी करती है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में करती है। जब हरियाणा दिवस आता है तो महिलाओं की अगर कोई शुभ लेता है, कोई शुभगाहट होती है कि महिलाओं की चेहरों पर खुशी आनी चाहिए, उनको आपकी मदद देनी चाहिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी से सुनना है कि हमने व्यवस्था का परिवर्तन कर दिया। ठीक है पंकज जी, आपकी बात पहुंच गई है। ठीक है बजरंग दास जी, आपसे एक आखिरी रिएक्शन।
बजरंग जी आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर लगातार आमने सामने हैं पार्टियां, दावे किए जा रहे हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल मचा दिया। आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे